সবার মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার খেলার মাঠ আজ সবার বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে বিপ্লবের মাটিতে থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ ম্যাচ অফিসিয়াল। আমরা ম্যাচ অফিসিয়ালকে বলছি খেলাটা একটু দ্রুত পরিচালনা করুন। তবে এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারের দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান, একদিকে তুষার সরকার এবং অপরদিকে বাপন। একেবারে ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ। যে টিম জয়লাভ করবেন সেই টিমের জন্য থাকছে আরও একবার সুযোগ, এবং এই ম্যাচ থেকে যে টিম রানার্স হবে অর্থাৎ লুজার, তাকে কিন্তু এই বছরের জন্য এমটি স্ল্যামার ছাড়তে হবে। এক কথায় কারোই আর মারো, ডুই অ্যান্ড ডাই ম্যাচ। দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান অবশ্যই তুষার সরকার এবং বাপন সাময়িক বোলিং মার্কে। তবে এই মুহূর্তে দুই ম্যাচ অফিসিয়াল, এটা পেগামুদ্দিন এবং আরিন্দম। মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের প্রথম বল একেবারে দলের অধিনায়ক তুলে দিয়েছেন সোমেশ ওয়ার অর্থাৎ শুভেন রাও, লম্বা রান আপ। অবশ্যই স্ট্রাইকে বাপন এবং নন স্ট্রাইকে তুষার সরকার। একেবারে ব্যাটের কিনারে লিখেছেন, বল চলে যাবে একেবারে পয়েন্ট অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে, অর্থাৎ 4 রান বাপন সাময়ের ব্যাট থেকে। প্রথম বল যেখান থেকে একেবারে স্বাগতম জানিয়েছেন 4 রানের মাধ্যম থেকে বাপন সময় চলছে। একদিকে মহাদেব ধ্রুব 11 ইউনাইটেড এবং অপরদিকে অ্যাঞ্জেল সিকে আর একেবারে হালকা হাতে খেলেছেন। কোনোরকম রান নেবার চেষ্টা করবেন না বাপন সময়। যদি কোথাও না কোথাও গত বলের কথা বলি, যেভাবে একটা একেবারে পয়েন্ট অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সীমানার বাইরে, এ বল থেকে ডট বল। আবার হালকা হাতে খেললেন, একেবারে একটা সিঙ্গেল রান। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারে 5 রান। তবে যেখান থেকে চলমান প্রথম ওভারে খেলা, অবশ্যই বলিং মার্কে সুমন রাও আছেন, লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন। এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে তুষার সরকার। একেবারে
বল সরাসরি বল চলে গেল একেবারে লগন অঞ্চলে। বল চলে গেল সবুজ ঘাসের বুক চিরে সীমানার বাইরে, যার অর্থ 4টি রান তুষার সরকারের ব্যাট থেকে। আর এই 4 রানের সুবাদে দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারের 9 রান। অবশ্যই বোলিং মার্কে মিস্টার সুমন রাও। আবারও লম্বা রান আপ তুষার সরকারের বিরুদ্ধে। ফুলটস বল একেবারে লগপ অঞ্চল থেকে ডান অফ দ্য গ্রাউন্ড, বল চলে গেল আবারও ব্যাক টু ব্যাক সবুজ গাছের বুক ছেড়ে। আই থিঙ্ক মিড অফ অঞ্চলে সৌগত মান্না ছিলেন। একেবারে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, আবারও 4টি রান তুষার সরকারের ব্যাট থেকে। যেখান থেকে তুষার সরকার দুটো বল ফেস করেছেন, 8 রানে অপরাজিত আছেন, এবং অপরদিকে বাপুর সময় 3 বল থেকে 5 রান। सरकारों का सरकार तुषार सरकार पूरी तरह से गेंद को भेज देगा सीमा रेखे के बाहर लगॉफ के दिशा से और दे जाएगा आधा दर्जन रन। নেশায় দৌড়ে চলি জমে আজ এ লড়াই MTCL 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 মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। ইতিমধ্যে প্রথম ওভারে পরিসমাপ্তি। অ্যাঞ্জেল সিকিয়ারের দলীয় রান সংখ্যা 19 রান। 19 রানে পৌঁছে গেছে অ্যাঞ্জেল সিকিয়ার। যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা অবশ্যই বোলিং মার্কে মুস্তাককে নিয়েছেন। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল সিকিয়ারের 19 অর্থাৎ 19 রান। খেলাটা একটু দ্রুত পরিচালনা করুন। হারিয়াপ বি কুইক বি ফাস্ট। আবার হালকা হাতে খেলেছেন একেবারে মিড উইকেট অঞ্চলে, ওখান থেকে খেলোয়াড় আছেন, যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন আই থিঙ্ক 2 রানের সম্ভাবনা চেষ্টা করবেন ওখান থেকে ব্যাটার, তবে 1 রানে সন্তুষ্ট হতে হবে। বাপন সময় দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল সিকারের 20 অর্থাৎ 20 রানে পৌঁছে গেছে দল। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা বোলিং মার্কে মুস্তাককে আনা হয়েছে, একেবারে ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন তুষার সরকার, একেবারে জাস্ট ব্যাটের কিনারা লেগেছেন। ফাইনাল অঞ্চলে খেলোয়াড় ওখানে আছেন, সেখান থেকে আরও একটা জায়গা রোটেট করবেন। এই মুহূর্তে দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল সিকারের 21 রান এই মুহূর্তে। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা, তবে মুস্তাকের কথা বলি, যদি ব্যাক টু ব্যাক 2টো বল করলেন, 2টো বল থেকে সিঙ্গেল রান। এক্ষেত্রে বাপুর ব্যাট করছে উঠলো এবং বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে লগপঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে, দিগেলের আধা ডজন রান বাপুরের ব্যাট থেকে। অনফিল্ড আম্পায়ার এই মুহূর্তে পাইকামুদ্দিন স্যার আছেন, আই থিঙ্ক ফ্রন্ট ফুট একটু চেক করবেন। টেলিভিশন আম্পায়ার এই মুহূর্তে শান্তনু দিয়ে আছেন, কি সংকেতটা আসে আমরা একটু নজর রাখবো HD18 লাইভ চ্যানেলে। থার্ড আম্পায়ার ডিসেন্ট স্পেন্ডিং, ফ্রন্ট ফুট চেক করা হচ্ছে এই মুহূর্তে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন কি সংকেতটা আছে। ইজ এ ফেয়ার ডেলিভারি,
তবে এই মুহূর্তে দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের 27 রানে পৌঁছে গেছে দল। তবে যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা বোলিং মার্কে মুস্তাক, যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো সিঙ্গেল রান এবং তৃতীয় বল থেকে একটা ম্যাক্সিমাম হাওয়াই হামলা বাপুন সাময়ের ব্যাট থেকে 5 বল থেকে 12 রানে অপরাজিত আছেন। এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রেট 240 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন বাপুন সাময়। আবারও একেবারে নিজের ভঙ্গিমায় লগন অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। ডট ইউ বাই মিস্টার সামন বাপুই, স্পন্দন হসপিটাল ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি সাময় বাপুন সাময়ের ব্যাট থেকে। অবশ্য বোলিং মার্কে মুস্তাক। দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের এই মুহূর্তে 33 রানে পৌঁছে গেছেন দল, যেখান থেকে চলমান দ্বিতীয় ওভারে খেলা ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি। এক্ষেত্রে স্কালেগ অঞ্চলে খেলেছেন, সেখান থেকে খেলোয়াড় আছেন একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেট, যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি বাপুন সাময়। তবে এই ক্ষেত্রে একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেট। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 34 রানে পৌঁছে গেছেন দল। তবে যেখান থেকে চলমান তো দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে ইতিমধ্যে। অবশ্যই বোলিং মার্কে মুস্তাক। দ্বিতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারের 34 রান। অবশ্যই যে দাদাভাই এসেছেন আমাদের যে স্টেটে, যার বাইক যে হেডলাইটটা অন আছে, প্লিজ বাইকের হেডলাইটটা একটু বন্ধ করে দিবেন, ধন্যবাদ দাদাভাইকে। দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের এই মুহূর্তে 34 রান। তবে দ্বিতীয় ওভারে পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। একেবারে রুদ্ধশ্ব ম্যাচ এমটিসিএল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। দিবারাত্রি ব্যাপী চলছে লিগ ফরম্যাটের 16 দলীয় টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট মেদিনীপুর কলেজ মাঠ থেকে সরাসরি লাইভ সম্প্রচার SD18 ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। পরে বল আবার লম্বা রান দৌড় করবেন মিস্টার বলার সঞ্জয়। আবার একরস্তা লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে সেখান থেকে ওয়াইড বলের সংকেতটা আসবে এবং অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে এই মুহূর্তে। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 35 রানে পৌঁছে গেলেন দল অ্যাঞ্জেল সিকেআর। তবে যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা অবশ্যই বোলিং মার্কে সঞ্জয়কে নিয়ে আসা হয়েছে। বাপুন 1 2 3 4 ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। ডট ইউ বাই মিস্টার বাপুন সাময়। মিতা সুইট ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। একেবারে স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে এবং দিয়ে গেলেন আধা ডজন রান বাপুন সাময়ের ব্যাট থেকে। এবং দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল শিকারের 41 রানে পৌঁছে গেল দল। অবশ্য যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা আবার অবস্টেপের অনেকটা বাইরে, যার অর্থ ওয়াইড বলের সংকেতটা আসবে। অতিরিক্ত হাত ধরে আরো একটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে এই মুহূর্তে। স্কলেগ অঞ্চলে খেলেছেন, উচ্চতা পেয়েছেন, দূরত্ব পায়নি। হে প্রভু জগন্নাথ প্রেমানন্দে, এ क्या हुआ? বাপুন সাময় একেবারে স্কলেগ অঞ্চলে খেলেছিলেন, সেখানে খেলোয়াড় ছিলেন, ছুটে এসেছিলেন, বলটা সে মতো সময় পৌঁছাতে পারেনি, তালুবন্দি করতে পারেননি। দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের এই মুহূর্তে 43 রান, যেখান থেকে তুষার 5 বল থেকে 15 রানে অপরাজিত আছেন। স্ট্রাইক রেট এই মুহূর্তে তুষারের 300 এবং বাপুন সাময় 9 বল থেকে 26 রানে অপরাজিত আছেন।
288.89 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন দুই ওপেনার ব্যাটসম্যান। স্কালেগ অঞ্চলে খেলার চেষ্টা করেছিলেন তুষার সরকার, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটেনি। দলীয় রান সংখ্যা যা ছিল তাই, অর্থাৎ অ্যাঞ্জেল শিকারের দলীয় রান সংখ্যা 43, 43 রান। এক্ষেত্রে একেবারে লগব অঞ্চলে খেলেছেন, সেখানে খেলোয়াড় আছেন, ওখান থেকে আরও একটা জায়গা পরিবর্তন করবেন, এখান থেকে আরও একটা রান যুক্ত হবে স্কোরবোর্ডে। সব মিলিয়ে দলীয় রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শিকারের এই মুহূর্তে 44, 44 রানে পৌঁছে গেলেন দল। তবে বাপন সময় যদি কথা বলি, কোথাও না কোথাও অনবদ্য একটা ইনিংস করছেন এই মুহূর্তে। 9 বল থেকে 26 রানে অপরাজিত আছেন। আবার বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ব্যাটে বলে সংযোগটা ঘটাতে পারেননি। তবে সেখান থেকে ওয়াইড বলে সংকেতটা আসবে। অনফিল্ড আম্পায়ার মিস্টার অরিন্দম মাইতকে আছেন, যার অর্থ অতিরিক্ত হাত ধরে আরেকটা রান স্কোরবোর্ডে যুক্ত হবে। সঞ্জয় পরে বল, লম্বা রানা বাপন সাময়ের বিরুদ্ধে। একেবারে ব্যাটের কিনারে লেগেছেন এবং সেখান থেকে ওখান থেকে অনফিল্ড আম্পায়ার রেফার করেছেন আই থিঙ্ক হাইট চেক করার জন্য। এই মুহূর্তে টেলিভিশন আম্পায়ার চোখ রেখেছেন মিস্টার শান্তনু দে এবং তরুণ কুণ্ডু আছেন। কি সংকেতটা আসে? The fair delivery. নবগত ব্যাটার এই মুহূর্তে 22 গজে শিব শঙ্কর সামন্ত। দলের রান সংখ্যা অ্যাঞ্জেল শেখারের এই মুহূর্তে 45, 45 রান, তবে একটি উইকেটের বিনিময়ে। যেখান থেকে চলমান তৃতীয় ওভারে খেলা অবশ্যই বোলিং মার্কে সঞ্জয়। অ্যাঞ্জেল শিকারের দলীয় রান সংখ্যা 45 রান, একটি উইকেটের বিনিময়ে। চলছে মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ 2025। পরে বল, আবারও লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন সঞ্জয়। স্কলেগ অঞ্চল খেলেছেন ডার অফ দ্য গ্রাউন্ড, বল চলে যাবে একেবারে সবুজ ঘাসের বুক চিরে সীমানার বাইরে। 4টি রান শিবশঙ্করের ব্যাট থেকে। দলীয় রান সংখ্যা এই মুহূর্তে অ্যাঞ্জেল সিকেয়ারের 49, 49 রান। আর মাইক্রোফোনে একটু পালাবতল, আমি ওয়েলকাম করবো অরুণদাকে। थैंक यू रमेश। और इस वक्त जो है कि आप देख पा रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर 49 रन टोटल जो है कि स्कोर बोर्ड दिखा रहा है। वहीं पारी नंबर पहला चल रहा है। 2 लूजिंग टीम्स के बीच ये मुकाबला। यहाँ जो भी टीम हारेगी उनका सफ़र MTCL से विदा होगा 2025 के लिए, लेकिन जो टीम जीतेगी उसके लिए सौगात रहेगा। RC ब्रदर्स जो है कि वेटिंग कर रहे हैं, उनके साथ उनका मुलाकात, और उसके बाद एक मैच बचेगा और वो सारा 11 आनंदपुर जो है कि इस वक्त लीडिंग इन फ्रंट है, उनके साथ मुलाकात। और उसके बाद टेबल टॉप की टीम 3 जो है कि पहुंच जाएंगी कल के लिए, कल प्लेऑफ के लिए। और वहां से जो है कि मोमेंटम शिफ्ट होगा और कल ग्रुप डी का पहला जो है कि संस्करण चलेगा लीग फॉर्मेट। वहाँ से एक टीम पहुँचेगी, उसके बाद 4 टीमों को लेकर नॉकआउट जो है कि शुरू होगा।
जो लाइट जल रहा है बाइक का उसे थोड़ा ऑफ कर ले, जो भी अभी आए हैं। सुमन राव अपने बॉलिंग मार्ग पर हॉस्टल प्रांत से प्रारंभ करेंगे चौथा ओवर। आते ही गेंद को हवा में उड़ाया है, मौका मौका मौका, नो मैंस रीजन पर गेंद लैंड हुई। हालांकि दोनों के लिए ही मौके बने थे, बॉलर स्वयं भी फॉलो थ्रो में जा रहे थे और कवर के खिलाड़ी भी सामने बढ़ रहे थे, लेकिन टास्क बहुत ही बड़ा था। लगभग 30-40 मीटर ग्राउंड जो है कि कवर करना था, उसके बाद कैच का मौका बनता। कुछ भी हो, बहरहाल अब स्ट्राइक पर हैं टिया यानी कि शिव शंकर सामंतो। जोरदार हिट लगाने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क सही नहीं, लेकिन फिर भी एक रन जरूर पूरा करेंगे। MTCL संस्करण चौथा दिन दूसरा चलता हुआ, जबकि दुधाली रोशनी में ये कृत्रिम रोशनी में ये ग्राउंड दुल्हन की भांति आज सजी हुई है। और इसका श्रेय अगर जाता है तो बबलू दा जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं। रिवर्स खेला है, तेज तरार दे दनाधन, लेकिन खिलाड़ी यहां पर तैनात, सिर्फ एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या बढ़कर 52। सुमन भांजा इस वक्त गेंदबाजी पर, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। इस बार इन फ्रंट ऑफ स्टाइल ऑफ ड्राइव किया, जबकि खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर क्षेत्र रक्षण करते एक रन और जोड़ लिए। जोड़ तोड़ गुना भाग सब कुछ चलता है इस खेल में, क्योंकि यह क्रिकेट है, उफ एंड आह चलता है। फिर से एक बार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद और बल्ले के बीच दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम सागर ने पूरा किया। बिहाइंड द विकेट विकेट कीपर सागर अली, जो कि मिस्टर IPL के नाम से विख्यात ये खिलाड़ी। सुमन पीछे की तरफ गेंद, फाइन लेग के खिलाड़ी को जो है कि सर्कल में रखे हुए हैं। बिंदी गेंद, कुल मिलाकर ओवर नंबर समाप्त हुआ चौथा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन, यानी कि मात्र इस ओवर से 4 रन आए। 49 3 ओवर की समाप्ति के बाद, अब जो है कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन, 1 विकेट खोकर कहीं ना कहीं ये आकलन की जा रही है कि आने वाले ओवर में जहां तक खिलाड़ी रनों के लिए जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अच्छा टोटल सेट करना चाहती है टीम। अपने प्रतिद्वंदी टीम के लिए दोनों ही टीमें शीर्ष पायदान में पहुंचने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए जो है कि ललायित है। एंजल सिकेरोड इस वक्त जो है कि बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही है टीम। और वहीं गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज देवारपन किस प्रकार से अपने आप को अर्पित करते हैं, क्योंकि सामने हैं खिलाड़ी शिव शंकर सामंतो। अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, नैकल बॉल जिस प्रकार से यूज होता है उसी प्रकार की गति वाली ये गेंद थी, धीमी गति वाली गेंद। समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज टिया। नतीजा बिंदी गेंद। देवारपन इसके पहले वाले मैच में भी हमने देखा, बहुत शानदार गेंदबाजी किए थे। टीम वहां पिछड़ी, लेकिन यहां अपनी टीम को अपग्रेड करना जरूर चाहेंगे। भटकी हुई गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का संकेत, एक्स्ट्रा रन। इस एक रन के साथ रन संख्या 54। धीरे धीरे ठंड में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन क्रिकेट का खुमार, क्रिकेट का क्रेज सर चढ़ करके बोल रहा है। इस वक्त भी जो है कि दर्शक
अभी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो ये विटनेस बन रहे हैं इस MTCL संस्करण 4 के लिए। इस बार बैकफुट में जाकर बैंग ऑन द टारगेट, नो मोर क्वेश्चन। SIX 6, डिलाइटफुल 6 रन्स। गेंदों के लिए कुछ नहीं बचता है। बल्लेबाज अगर अपने मूड में है तो फिर गेंदबाज को उनके विपरीत क्या वो स्ट्रेटजी है, क्या वो प्लानिंग है, ये भी करना पड़ता है। इसी का नाम है क्रिकेट। जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ वही रहते हैं इस खेल में अपने आप को बनाकर। बल्ला तो भांजा है लेकिन संपर्क साधने में असमर्थ रहे बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रन ज्यों के त्यों 60। 5वां ओवर प्रगति पर चल रहा है। देखिए कहानी क्या रंग लाएगी, लेकिन अब तक कश्मकश चल रहा है दोनों ही टीमों के बीच। एंजल 11 सीके रोड, ध्रुव 11 झाड़ग्राम जंगल महल की टीम है। ध्रुव 11 दोनों का मुलाकात चल रहा है। इसके बाद एक टीम वेटिंग कर रही है, इनमें से कौन जो है कि उनके साथ मुलाकात करेगा। हवा में खेला, ऊंचा खेला, 1 बाउंस ओवर द रुक, 4 रन चौका। इस चौके के प्रस्तुतकर्ता इंडिया बेल, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, SAC सब्जी भंडार, द कवर अड्डा, प्री ओन्ड कार बाजार, देवदर्शन टूर्स एंड ट्रैवल्स। अगली गेंद इस बार ऊंचा खेले, हवा में खेले और सीधे बल्ले से इन फ्रंट ऑफ स्टाइल 6 रनों के लिए थंडरस्टॉर्म 6 रन्स। डिलाइटफुल बल्लेबाजी, मिडिल ऑफ द ब्लेड, इन फ्रंट ऑफ स्टाइल। बल्लेबाज अपने आप को पा रहे हैं।
sensational, beautiful, looks like a wow. 6 runs. Biggie. Front foot checking. Front foot checking for no ball. It's a call of on-field umpire to TV umpire. Let's see what will be the decision. Bowling side review. Okay. It's a नो बॉल, यानी कि अब मुफ्त वाली गेंद आएगी, कितनी दूर तक जाएगी ये भी देखना है। लेकिन ग्राउंड में इस वक्त जो है कि पेट्रोलिंग कर रही है हमारी एल्फिस्टन डॉग, जो कि स्क्वाड है खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए। ओहो, ये मुफ्त वाली गेंद को बड़ी दूर तक भेजे हैं, आधे दर्जन रन के लिए, क्योंकि यह है शिव शंकर सामंतो और अपना महत्व को जो है कि यहां पर दर्शा नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर अपने बॉलिंग मार्क पर अभिषेक। फिर से एक बार, इस बार हवा में है और खिलाड़ी तैनात भी है, लेकिन खिलाड़ी बने दर्शक, दर्शक बने खिलाड़ी। एक और छक्का, एक और 6 रन, कुल मिलाकर डबल डिप छक्कों के साथ रन संख्या बढ़ा है, 90 पर जा पहुंचा है। फिर से एक बार वही टोटल के करीब ध्रुव 11 के लिए, जो कि पिछला मैच इनके सामने आया था, उसी प्रकार का कुछ ये भी मैच बन रहा है। देखिए कहानी क्या रंग लाएगी, क्योंकि अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव सब कुछ देखने को मिलता है इस खेल में। फिर से एक बार बैकफुट पर बैंग ऑन द टारगेट खेलना चाहते थे, संपर्क साधने में असमर्थ रहे बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बिंदी गेंद, इस गेंद के प्रस्तुतकर्ता स्पोर्ट्स वर्ल्ड, प्री ओन्ड कार बाजार। ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, और ये उंगली खड़ी हुई है, यानी कि बल्लेबाज डगआउट्स की तरफ। सफलता हाथ लगी है और एक अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त बैक टू पवेलियन। टिया बैक इनटू द हट, उनके स्थान पर नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर अराइव कर रहे हैं। आखिरी ओवर प्रगति पर, रन संख्या 90 यानी कि 90। सुरजीत दास, स्वराज दास जो है कि गुड्डू इस वक्त क्रीज पर। अच्छा खेल, अच्छा माहौल, कुल मिलाकर ये प्रस्तुति MTCL संस्करण 4 का अगली गेंद लेकर बॉलर अभिषेक, जहां तक ये आखिरी गेंद है इस पहली पारी के लिए, लास्ट बॉल। हेलो, देखें क्या कुछ घटता है, क्योंकि कहानी कश्मकश आखिरी गेंद तक चलती है, क्योंकि ये क्रिकेट है मेरी जान। ऑन साइड के जानिब अलॉन्ग विद द कारपेट मिड विकेट के खिलाड़ी 1 रन नहीं 2 रन के लिए तेजी दिखाए हैं, और 2 रन पूरा भी क्या, तीसरे रन के लिए भी मन बनाया है और तीसरा भी पाया है। चौथा के लिए ये तो सुसाइड है। एक और विकेट आउट,
यानी कि कुल 93 रन बने हैं, 94 का टोटल है। 94 इज द टारगेट सेट द टीम एंजल फॉर थ्रू 11। ग्राउंड्समैन थोड़ा ग्राउंड में जाएंगे, ग्राउंड्समैन थोड़ा ग्राउंड में जाएंगे। 94 इज द टारगेट। मिलते हैं हम एक छोटे से विराम के बाद, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दूसरे सत्र के साथ। গ্রাউন্ড স্টাফ একটু গ্রাউন্ডে যাবেন, হোয়াইটনার নিয়ে একটু গ্রাউন্ডে যাবেন। গ্রাউন্ড স্টাফ কুইক, একটু ফাস্ট। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NNNNNTCL, NNNNNTCL, ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। NNNNTCL, 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 মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NNNNTCL, NNNNTCL, ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। আরে ব্যাটে বলে আগুন জ্বলে, খেলবো মোরা হৃদয় দিয়ে। জয়ের নেশায় দৌড়ে চলি, জমবে আজ এ লড়াই। NNNNTCL, NNNNTCL,
Boys Cricket League. মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। মেদিনীপুর দিচ্ছে ডাক এবার, খেলার মাঠ আজ সবার। বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে, বিপ্লবের মাটিতে ক্রিকেটের ঘাটিতে স্বপ্নের হবে আজ খেলা। NTCL, NTCL। थैंक यू डीजे, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी दर्शकों को जो अब तक बैठे हुए थे इस मैच को देखने के लिए, क्यों ये डू और डाई मैच है। दोनों टीम के लिए कड़ी चुनौती है और उस चुनौती को देने के लिए 94 रनों का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे हैं। 2 SS जोड़ी लगी हुई है, कह सकते हैं सागर अली तो वही हैं महिषा दल के राजकुमार शौगतो मन्ना। तो SS क्या भारी पड़ेंगे, देखना जरूर बाकी है, क्योंकि ये महादेव जंगल महल यूनाइटेड की टीम है। टिया शिव शंकर गेंदबाजी के लिए तैयार, सब तैयार। सामने है शौगतो मन्ना, जबकि हॉस्टल एंड से और SS इस वक्त दिख रही है। एस में गेंदबाजी, सामने है शौगतो, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर है सागर। पहली गेंद पर बरस पड़े हैं मामा। ऑन साइड पर रखा खिलाड़ी जब तक कि तैनात, कोई रन नहीं। दुधिया रोशनी में दुल्हन की भांति सज चुकी है। पैड लाइट्स टावर हाइट ऑन हो चुके हैं, हर वो लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन अब मामा का बल्ला बोला नहीं है। मन्ना का बल्ला, क्या मन्ना का बल्ला बोलेगा इस मैच पर? बिल्कुल बोलेगा। शॉर्ट अप लेंथ की गेंद थी, लेंथ को पिक किया, हेल्पलाइन नंबर 6 टिक किया, टिमटिमाता हुआ ये छक्का। 6 रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ। और उस छक्के के प्रायोजक है स्पंदन हॉस्पिटल, सेनको गोल्ड, SAC सब्जी भंडार, सम्राज खान, आनंदपुर का कोहिनूर और दादा बोदी बिरयानी। टिया तैयार गेंदबाजी के लिए, सामने है मन्ना। फिर से एक बार इनसाइड आउट ओवर द टॉप, 1 बाउंस इनटू द फैंस। एक और चौका, 4 रन जोड़ लिया खाते में और उस 4 के बाद रन संख्या 10 पर जा पहुंचा है। देखिए भली भांति ये जानते हैं बल्लेबाज कि टिया क्या करने वाले हैं, क्योंकि 1-2 दशक से तो क्रिकेट दोनों खेल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सी कमजोर कड़ी है, मजबूत कड़ी है। कड़ी से कड़ी को जोड़ करके चलना आगे है, अपनी टीम को चलाना है। जो चाहिए टीम में सिचुएशन डिमांडिंग है, उस सिचुएशन डिमांडिंग को बरकरार रखना है। 15.5 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है, वहीं अब भी 84 रन चाहिए 33 गेंदों पर टीम को जीतने के लिए। शॉट, बिल्कुल ट्रेडमार्क शॉट, शौगतो मन्ना ऑन फायर। इस बार जा रही है गेंद, लॉन्ग ऑफ रीजन पर निकल जाएगी और 4 रन कह रहे हैं अंपायर। देख सकते हैं अंपायरिंग की भूमिका पर इस वक्त है अरिंदम रॉयल, कहते हैं प्यार से। SS का चश्मा चमक रहा है, स्क्वायर लेग अंपायर। और वहीं स्टैंडिंग अंपायर कहेंगे हम शेख पैगाम उद्दीन सर। शेख पैगाम उद्दीन सर है, तरुण सर और कैप्टन संतनुदा बैठे हुए हैं। डिनर कंप्लीट और श्रीमंतो सातरा इस वक्त लाल चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो ब्रांड कहाँ गए हमारे तरुण कुंडू? यस, वे भी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बेस्ट अंपायरिंग पश्चिम मेदिनीपुर एसोसिएशन अंपायरिंग यूनिट से हम देख रहे हैं इस वक्त हमारी पैनल लगी हुई है। शॉट, ये भी फ्लिक एंड क्लिक, एक और 4 रन। पूरा वैगन व्हील को सेट किया। वो लॉन्ग ऑन से सफर शुरू हुआ था, डायरेक्ट डीप स्क्वायर लेग पर जाकर के खत्म हुआ। इसी के साथ 5 गेंद पर अच्छा वैगन व्हील सेट किया। पहला तो डॉट, उसके बाद 6, फिर 4 लगातार 3-4। अब टीम को चाहिए क्या? जीत की दरकार। अगर जीत की दरकार है तो फिर ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी आपको। आइए, 18 रन बोर्ड पर लग चुका है। अंतिम गेंद आना बाकी है टिया का। पहले ही मैंने कहा था कि टिया के विपरीत अच्छे बल्लेबाजी करते हैं शौगतो, ये जानते हैं, महिषा दौल से आते हैं। यस,
एक और उड़ाया इस गेंद को, डायरेक्ट मेदिनीपुर से महिषादल राजबाड़ी में लैंड किया है। 6 रन उड़ाया है मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ मैजेस्टिक शॉट, मैन ऑन फायर शौगतो मन्ना। और उस छक्के की बदौलत स्कोर कार्ड में इजाफा होगा। लेकिन इससे पहले शेख पैगाम उद्दीन सर कह रहे हैं कि थोड़ा सा फुट चेक कर लीजिए सर, कहीं आप आगे तो निकल नहीं लिए। और थर्ड एम्पायर के लिए भेजा है उनको चेक करने के लिए। तो हर वो एंगल को चेक कर रहे हैं एज ए ऑपरेटर SD18 के, और मैनेजर भी पहुंचे हुए हैं SD18 के। और बहुत हार्डवर्क हमने देखा है। अब पूरे राज्य में चर्चा है SD18 की, और चर्चा MTCL की पूरी बंगाल में है, क्योंकि ये मेदिनीपुर का पर्व है, मेदिनीपुर का सबसे बड़ा गर्व है। और इस गर्व में जो सोच उम्दा रखे हैं, यूथ को जोड़ रखे हैं, और स्पेशल थैंक्स तो हम देना चाहेंगे निर्मल चक्रवर्ती सर को, आवर टूर्नामेंट चेयरपर्सन, द हार्ट ऑफ टूर्नामेंट हम कहते हैं। सौगतो घोष सर हैं, बापी सर हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किट पार्टनर स्पोर्ट्स वर्ल्ड को धन्यवाद। फुट पार्टनर देवदर्शन टूर एंड ट्रैवल, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक इस वक्त इट्स अ फेयर डिलीवरी, जो डिसीजन आई है तो ये फेयर डिलीवरी है। इसी का 6 रन इंडिकेट किया, और छक्के के साथ रन संख्या पहले ओवर में 24 रन बन चुके हैं, यानी कि इसी ओवर से 24 रन। पहला गेंद डॉट, उसके बाद छक्का, फिर आता है 3 चौका, फिर आता है छक्का। कुल मिलाकर के गेंदबाज को किया है हक्का बक्का। और 24 रन अगर आप देखते हैं तो फिर आने वाले 30 गेंदों में कितने चाहिए। इतना आसान है क्रिकेट रात के वक्त में खेलना। क्यों कहते हैं हम ये महिषादल के राजकुमार है। आज 22 गज पर राज किया है, राजत्व किया है, क्योंकि ये मैच के इंपॉर्टेंट मैच जानते हैं। कह सकते हैं इकाई से दहाई तक पहुंचे हैं दोनों भाई, दोनों तबाही। एक भाई ने तो तबाही मचाया, अब दूसरे की पारी है, मिस्टर ISPL के पारी है। क्या मिस्टर ISPL इस वक्त MTCL में चमकेंगे जो बल्ला खामोश है? आइए जरूर देखेंगे हम। 30 गेंदे 70 रन, 14 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। अकरम बेग, तेज तरार है ये खिलाड़ी, इनकी गेंदबाजी। और सामने खड़ा कौन है? मिस्टर ISPL, लेकिन इस वक्त MTCL में। चलिए फेस करने के लिए तैयार। पहली गेंद लेकर के अकरम बेग हॉस्टल एंड से 180 डिग्री घुमा, और उसके बाद खिलाड़ी को खड़ा रखा और खड़ा कर दिया। बड़ा विकेट लेकर के मछली को जाल में फंसाया। इसे कहते हैं पलटवार करना जानती है टीम, और पलटवार की है। बड़ी मछली जाल में फंसी, और जिस रडार पर गेंद आई थी मानो ऐसा लगा वो ये नहीं सोच रहे थे कि खिलाड़ी वहां पर रहेंगे, जजमेंट कर लेंगे, रात का वक्त है। लेकिन उसके बाद वक्त जैसे बीता, वो कहते हैं ना कि रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, और वक्त बदला है। अकरम बेग, क्या गेंदबाजी की है, उम्दा गेंदबाजी। सबसे बड़ा खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी को डकट की राह दिखाया। विकेट आता हुआ पहला 24 पर 1.1 गेंद अब तक हुई है, यानी कि अब 29 गेंदों पर 70 रन चाहिए। न्यू बैटर इस वक्त देवरपन आया है। अब देवरपन को अपना रूप अर्पण करना होगा। अकरम बेग पहली गेंद पर जब किसी गेंदबाज को सफलता मिल जाती है ना, तो फिर उनका मोरल अप रहता है। और अच्छी बल्लेबाजी हुई है, झकास बल्लेबाजी हुई है। कह सकते हैं हम, जिस प्रकार से बल्लेबाजी हमने देखा एंजल CKR का, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। लेकिन अब महादेव महाकाल यूनाइटेड टीम को अब यूनाइटेड पन दिखाना होगा। यहाँ से अगर यूनाइटेड हो जाती है, वो जो पार्टनरशिप खोज रहे हैं आप, अगर वो बन जाती है तो फिर बात बन सकती है। बनने को हर कुछ बन सकता है क्रिकेट, क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल है। चलिए अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ प्रेडिक्शन करना फेल है। बहुत सुंदर खेला, 1 रन के लिए दिशा मात्र दिखाया। जब तक कि कवर तक फील्ड होती, एक सिंगल दौड़ करके पूरा किए। ये सूझबूझ वाली क्रिकेट हम कह सकते हैं। जैसे देवरपन आए, उन्होंने देखा सेट बैटर सेट हो चुके हैं। प्रथम से ही 24 रन पहले ओवर में सौगतो मन्ना ने जो वैगनविल को सेट किया था, उनके बदौलत हम बोर्ड पर देख रहे हैं। 25 रन बोर्ड पर लग चुका है, और ड्रोन से ये दुर्लभ पिक्चर इस वक्त कैप्चर हो रही है MTCL सीजन 4 पर। डे 2 पर हम देख रहे हैं दिवारात्रि का ये खेल। कल ग्रुप D खेलेगी, लीग मैचेस वहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद एक ग्रुप का जो एक मैच बचा हुआ है वो हम देख लेंगे। फिर चलेंगे डायरेक्ट हम सुपर 4 की जो तैयारी कर रखे हैं हमने।
तो टेबल टॉप सभी टीमें आगे बढ़ेगी और फिर वहाँ से जो हमें देखने को मिलेगा सेमीज एंड फाइनल, जो फाइनलिस्ट टीम आएगी कहाँ जाएगी कब। इस बार हवा में है गेंद, खिलाड़ी बहुत दूर से दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते दर्शक दीर्घा तक पहुंचाया इस गेंद को। स्वागतम मन्ना मार रहा है और ये छक्के के साथ रन संख्या 31 पर जा पहुंचा। अब 27 गेंदों पर 63 रनों की आवश्यकता है, दूसरा ओवर चल रहा है। मन्ना की बात करें तो 7 गेंदों पर 30 रन। बहुत जल्द रिवू का फिर से एक बार रील्स आने वाला है और बेदनीपुर के एक ऐसे होनहार कह सकते हैं हम शेख सनवर 97 सनवर हुसैन, जो इंस्टाग्राम हैंडल को चलाते हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स उनके भी है, तो वहाँ भी रील्स बन रहा है। रिवू मंडल की भी रील्स बन रही है। एक कहीं पे निगाहें कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 1 रन भाग रहे हैं और इस 1 रन के साथ रन संख्या 32 पर जा पहुंचा। लेकिन निशाना साध नहीं पाए। उन्होंने कहा कि अगर ये फुल टॉस आ रही थी, अगर लग जाती तो बिल्कुल ये ब्लाइंड शॉट उनका जो फेवरेट है, वैसे तो रिवर्स किंग कहते हैं, लेकिन रिवर्स अभी तक चलाया नहीं उन्होंने। और इसी के साथ रन संख्या 32 पर 1 विकेट जरूर खोया, दूसरा ओवर चलता हुआ। अब 26 गेंदों में 62 चाहिए। उल्टा सीधा आप देख सकते हैं, 62 26 में 62। थोड़ी देर के लिए मैं भी कंफ्यूज था। अगली गेंद तैयार, अकरम बेग। तारीफ करनी होगी अकरम बेग की, जो पहली गेंद पर बड़ा विकेट लिया, उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट देख सकते हैं। महादेव ध्रुव 11 यूनाइटेड जंगल महल की टीम थोड़ा सा डकआउट खामोश बैठा हुआ है। इसलिए बैठा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि एक पार्टनरशिप पहले बन जाए, फिर उसके बाद एंजल सीकेआर के ऊपर वो हावी हो सकते हैं। ऑलवेज देखा गया है एंजल सीकेआर MTCL पर पार्टिसिपेट कर रही है एक नई उम्मीद के साथ। हर वर्ष हर नई टीम आती है और हर नई टीम के पास चैंपियन का जो ट्रॉफी है वो जाती है। तो इस वर्ष भी नई टीमें उपस्थित हुए हैं, तो क्या उनके पास जाएगी ट्रॉफी, जरूर देखना होगा। एक नया चैंपियन मिलेगा हमें इस वर्ष, चौथे साल में। ऑन साइड पर खेला, 1 रन, 1 की मांग है और 1 को क्या 4 में कन्वर्ट करेंगे। आज भाग्य तकदीर भी साथ है, मामा के साथ है, कह सकते हैं। पूर्व मेदिनीपुर राजा राज कर रहा है। और वैसे तो पूर्व मेदिनीपुर के सचिन कहते हैं। तो 2 ओवर का खेल खत्म हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन, 1 विकेट जरूर खोया टीम। इस ओवर से मात्र 13 रन आए। तो पहले ओवर से हमने देखा था 24 रन, इस ओवर से 13 रन एक्स्ट्रा अब तक खर्च किए ने। 1 विकेट जरूर खोया था सागर अली का। 2 ओवर का खेल खत्म, 37 रन। अब जीतने के लिए चाहिए कितने, आने वाले ओवर में जरूर हम देख लेंगे। यहाँ से 24 गेंदों का खेल बचता है, 24 गेंदों का खेल बचता है, जीतने के लिए 57 रन चाहिए। तो फिर आपके पास मौके हैं। 1 ओवर अगर अच्छा बीत जाएगा एंजल सीकेआर की ओर से, यानी कि गढ़बत्ता के सरकार विकेट के पीछे से करेंगे पलटवार, तो मैच बिल्कुल वो हाड्डा-हाड्डी लड़ाई, बेस्ट मैच जिसकी गुंजाइश हम कर रहे थे, जो फैंस SD18 यूट्यूब चैनल पर बैठ कर के इस वक्त मैच देख रहे हैं, वो कर रहे हैं कि मैच गहमा गहमी गर्मा गर्मी होगा और क्रंच मैच होगा, टाइड मैच होगा, क्योंकि दोनों के लिए डू और डाई है। कौन यहाँ पर इस सुपर टैकल कर जाएगा, सुपर रेड लगाएगा। खेल दिया ऑन साइड पर, मौके हैं। यहाँ भी वही देखा गया जो दूसरे ओवर की पहली गेंद पर हुआ था। टिया समंता है, वो आने के बाद सफलता दिला करके गए। अब वापस चले जा रहे हैं बैटर देवरपन। कहानी में बदलते देर नहीं लगती, वो कहते हैं ना, मैदान के भीतर चल रहे घमासान, खिलाड़ी लगा रहे हैं जी जान, और जी जान इतना लगा रहे हैं खिलाड़ी, कोई भी 1 इंच जगह छोड़ना नहीं चाहता है, वापस मैच पर आना चाहता है और मैच पर आए हैं वापस। इस वक्त पी सुमन राव का आगमन हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो ओवर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर देखा था विकेट, ये तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आई है विकेट। अब 23 गेंदे 57 रन चाहिए, यानी कि 37 बोर्ड पर लग चुका है। 2 विकेट खो चुके हैं, एक बायां हाथ गया लेकिन दूसरा बायां हाथ अंदर आया, और ये की फैक्टर हो सकते हैं, ये विनिंग छड़ी हम कह सकते हैं। ये विकेट सुमन भांजा का जो बहुत निर्णायक होगा। एंजल सीकेआर चाहेगी, लेकिन वहीं दोनों टीम चाहेंगे एक अच्छा पार्टनरशिप दोनों बैटर के बीच अगर बन जाती है। 1 ओवर अगर चेक कर लेते हैं तो फिर मैच और क्लोज होता जाएगा।
लेकिन औसतम अगर रिक्वायर्ड 100 की बात करें तो 14 के ऊपर आपको बल्लेबाजी करनी होगी। जो आपने 15 करके दिखाया तो 14 ये भी आप कर सकते हैं। मैच मजा आ रहा है, हाई वोल्टेज मैच, ठंड के माहौल में गर्म वाला मैच, प्रेशर में है इस वक्त। क्या गेंदबाज या बैटर देखेंगे आने वाले वक्त में, जल्दी करें प्लीज। तुषार, फील्डिंग इस वक्त टाइट, पोजीशन, गेंदबाज हालांकि बापी ठक्कर को लगाया गया है और बापी ठक्कर आते ही पहली गेंद पर सफलता और दूसरे गेंद पर स्वयं फॉल थ्रो में अच्छी क्षेत्र रक्षण देखी गई। बिंदी गेंद सामने है। सुमन भांजा प्रीमियर लीग के ए भी की फैक्टर खिलाड़ी, मैंने कहा विनिंग छड़ी आ सकती है इनके पास, वो जादू की छड़ी लेकर के आए हैं। बहुत सारे प्रीमियर लीग में हमने देखा, मैं तो टूर्नामेंट बनते देखा, लेकिन ये टूर्नामेंट थोड़ा अलग है, ये डिफरेंट है और यहाँ पर एक दृढ़ संकल्प के साथ आकर के आपको खेलना पड़ता है, वो जिगरा दिखाना पड़ता है। वाइट बॉल कहा शेख पैगाम उद्दीन सर, एक्स्ट्रा रन एक और ऐड होगा खाते में। अब 22 गेंदे 56 रन, 56 इंच का सीना कौन लेकर के चल रहा है, बैटर चल रहे हैं या फिर गेंदबाज चल रहे हैं, लेकिन अच्छा कमबैक किया है पहला ओवर होने के बाद। एंजल सिकियात, ये तो तारीफ करनी होगी। शॉट ये भी उम्दा है, टाइमिंग प्योर है, अफलातून टाइमिंग के साथ बैट मधुन सुमन राव ऑन फायर और छक्के के साथ रन संख्या जा पहुंचा है 44 पर। अब चाहिए जीत के लिए 50 रन 21 गेंदों पर, 21 गेंदों पर 50 रन। अब बल्लेबाजी झकास करनी होगी, जो झकास बल्लेबाजी 9 गेंदों पर 35 की है, नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर खड़े हैं, पूर्व मेदिनीपुर के सचिन कहते हैं हम। लेकिन अब मिनी इंडिया के खिलाड़ी बैंग ऑन द टारगेट कहते हैं हम इन्हें, पीछे की तरफ मांग है, जोखिम ले रहे थे और डायरेक्ट हिट करनी थी लेकिन थोड़ा दूर रह गए। स्वागत तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, बाई के रूप में 1 रन कंप्लीट और इस 1 रन के साथ रन संख्या 45 पर पहुंचा। 20 गेंदे 49 रन, मौके हैं। यहीं से हमने देखा था प्रीवियस मैच में, आपको याद होगा भास्कर, जहां से टीम थोड़ी सी और वापस कमबैक कर नहीं पाई, वही 20 गेंदे था 49 रन था। लेकिन क्या यहां से टीम महादेव जंगल महल यूनाइटेड कमबैक करेगी ध्रुव 11? अगर करेगी तो एक अच्छी पारी खेलनी होगी और अर्धशतक जरूर देखेंगे शौकत मन्ना का उनके फैंस। फील्डिंग जबकि टाइट की जा रही है। अब भी इस ओवर से 2 गेंदे हैं, बापी ठक्कर का होम ग्राउंड है और सामने स्वागतो मन्ना है। तैयार गेंदबाज बापी ठक्कर, ठक्कर फुल टॉस जरूर थी, मिस किया, क्या मिस कर दिए इस गेंद को। इतने अच्छे अच्छे शॉट आपने वैगन व्हील में सेट किया लेकिन कमजोर गेंद पर आप बरस ना पाए। इसी के लिए कहते हैं चाहे प्लानिंग आप जितनी भी कर लें, होता वही है जो खेल चाहता है। खेल क्या चाहता है, अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, और अनिश्चितताओं का खेल कुछ भी कहना यहाँ पर मुनाकिफ नहीं समझूंगा मैं। उसी के साथ एक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचा है 46 और 2 विकेट जरूर खोया है टीम। तीसरा ओवर चल रहा है, 19 गेंदे 48 रन चाहिए। सामने की तरफ स्वयं के फॉलो थ्रू में पैर जरूर लगाया, फुटबॉल खेलते हुए नजर आए खिलाड़ी जब तक कि तुषार कलेक्ट करते। इस ओवर से मात्र 9 रन आए। पहले ओवर में हमने देखा था 24, दूसरे ओवर में 13, तीसरे ओवर में 9 रन, कुल मिलाकर के 9 रन इस ओवर से, यानी कि अब 18 गेंदे 48 रन। 18 गेंदे 48 रन कितना आसान होगा, ये सभी को फिर से एक बार आने वाले 3 ओवर में कमेंट्री लेकर के आ रहे हैं मेरे साथी पार्टनर रमीज खान। আবার একবার স্বাগতম সকলকে, ধন্যবাদ শক্তিদা। দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে মহাদেব গ্রুপ 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের 46 রান, তবে 2 উইকেটের বিনিময়ে। দ্বিতীয় ওভারে পরিসমাপ্তি, যেখান থেকে একেবারে সৌগত মান্না 10 বল থেকে 36 রানে অপরাজিত আছেন। অরিন্দম দা ইনফ্যাক্ট প্লেয়ার কি এসেছেন নাকি? অরিন্দম দা, যে বলার এসছে উনি কি ইনফ্যাক্ট প্লেয়ার?
সৌগতর ব্যাট করছে উঠবে, একেবারে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন লগপ অঞ্চল থেকে সীমানার বাইরে। মিতা সুইটস ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি। সৌগত মান্না 11 বল থেকে 42 রানে অপরাজিত আছেন। তবে এই মুহূর্তে সৌগত মান্নার কথা যদি কোথাও না কোথাও বলি, স্ট্রাইক রেট 381.82 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন মিস্টার সৌগত মান্না। আর দলীয় রান সংখ্যা 52, 52 রান ইতিমধ্যে মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের, যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারের খেলা। অবশ্যই বোলিং মার্কে সমুখে নিয়ে আসা হয়েছে। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 17 বল থেকে 42 রানের প্রয়োজন। 17 বল থেকে 42 রানের প্রয়োজন। ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ চলছে, একেবারে রুদ্ধশ্ব ম্যাচ। স্বাগত হাই অ্যান্ড হ্যান্ডসাম, ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি, ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ওভার বাউন্ডারি সৌগত মান্নার ব্যাট থেকে। তবে এই মুহূর্তে মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের দলীয় রান সংখ্যা 58 রানে পৌঁছে গেছে। তবে সৌগত মান্না অর্ধশত রান করার জন্য আর 2 রানের প্রয়োজন। 12 বল থেকে 48 রানে অপরাজিত আছেন মিস্টার সৌগত মান্না, ম্যান ফ্রম মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুর। এই মুহূর্তে 400 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন মিস্টার সৌগত মান্না। একেবারে ব্লক লেন্থে বল করেছেন, সেখান থেকে খেলোয়াড় আছেন। যতক্ষণ বল ধরে ফেরত পাঠাবেন সেখান থেকে আরও একটা রান। তো ব্যাক টু ব্যাক, যেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো ম্যাক্সিমাম ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখেছিলাম সৌগত মান্নার ব্যাট থেকে। তো এই বল থেকে সিঙ্গেল রান। সব মিলিয়ে দলের রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 59, 59 রান। আবার বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন সুমন রাও, তবে ব্যাটাগুলো সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ব্যাটার। দল রান সংখ্যা এই মুহূর্তে 59, 59 রানে পৌঁছে গেলেন দল। 3.4 বল ইতিমধ্যে। অবশ্যই যেখান থেকে চলমান চতুর্থ ওভারে খেলা, আবারও একেবারে লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন মিস্টার সোমু। সুমন রাও উচ্চতা পেয়েছেন, তবে দূরত্ব পায়নি। একেবারে বলকে জমা পড়লো সরাসরি খেলোয়াড়ের হাতে। ইয়েস অ্যান্ড ইয়েস, সুমন রাও ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন, ইজ গন। দলীয় রান সংখ্যা 59 রান ইতিমধ্যে মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের। ব্যাটসম্যান একেবারে দ্রুত ব্যাটসম্যানকে মাঠের মধ্যে নামান জঙ্গলমহল ইউনাইটেড। জঙ্গলমহল ইউনাইটেড দলের অধিনায়ককে আমরা বারবার অনুরোধ করছি, নবাগত ব্যাটার অতনু এসেছেন। দলের রান সংখ্যা 59 রান। গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 13 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন। 13 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই কোন টিম জয়লাভ করবে, একেবারে রুদ্ধশ্ব ম্যাচ। মহাদেব ধ্রুব 11 ভার্সেস অ্যাঞ্জেল সিকেআর। ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ চলছে ইতিমধ্যে। লগন অঞ্চলে খেলেছেন, আবার উচ্চতা পেয়েছেন, দ্রুত পায়নি। এক্ষেত্রেও অতনুকে ফেরত যেতে হবে ডাক আউটে।
গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 12 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন। 12 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই কোন টিম জয়লাভ করবে সব কিছু দেখবার জন্য চোখ রাখতে হবে ইউটিউব চ্যানেলে, SD18 ইউটিউব চ্যানেলে। আর যারা অবশ্যই এখন পর্যন্ত দর্শক বন্ধুরা আছেন চাক্ষুষ করছেন মেদিনীপুর কলেজ মাঠ থেকে সরাসরি, অসংখ্য ধন্যবাদ এখন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য। সৌগত মান্না 13 বল থেকে 49 রানে অপরাজিত আছেন। কিন্তু 13টা বলই তো ফিনিশ করেছেন সৌগত মান্না। 376.92 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন মিস্টার সৌগত মান্না। ওসব বোলিং মার্কে যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা, আকরাম বোলিং মার্কে এসেছেন। তবে এই মুহূর্তে সামির ঠাক্কার কিছু খেলোয়াড়ের জায়গা পরিবর্তন করছেন। একেবারে ডু অ্যান্ড ডাই ম্যাচ চলছে না লক্ষ্যমাত্রা জেতার জন্য। 12 বল থেকে 35 রানের প্রয়োজন। আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুট করবেন মিস্টার আকরাম। সৌগত থেকে কি করে আপনি রুকে দাঁড়াবেন? একেবারে লগন অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। দিকে ডজন রান। 14 বল থেকে 55 রানে অপরাজিত মিস্টার সৌগত মান্না। দর্শক বন্ধুকে ব্যাটটা তুলে দেখানোর জন্য অনুরোধ করছি সৌগত মান্না। এভরিওয়ান সকলে মিলে বিগ হ্যান্ড করতালি সৌগত মান্নার জন্য। 14 বল থেকে 55 রানে অপরাজিত মিস্টার সৌগত মান্না। দলের রান সংখ্যা 65 রানে পৌঁছে গেল ইতিমধ্যে দল। বোলিং মার্কে মিস্টার আকরাম। 11 বল থেকে 29 রানের প্রয়োজন। সৌগত একেবারে সোয়াগ সে কিয়া স্বাগত। একেবারে লগা অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বল থেকে দুটো হাওয়ায় হামলা মিস্টার মান্না, সৌগত মান্না। Sanko Gold maximum over boundary. Dot you by Mr. Shogoto Manna. দশ বল থেকে জেতার জন্য ডেস্টিনেশন গন্তব্য কেবলমাত্র 10 বল থেকে 23 রানের প্রয়োজন। একেবারে রুদ্ধশ্ব ম্যাচ, ডু অ্যান্ড ডাই। এই মুহূর্তে সৌগত মান্না 15 বল থেকে 61 রানে অপরাজিত। এক্ষেত্রে আবারও বড় শট খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ওখান থেকে একেবারে বল চলে যাবে সীমানার বাইরে। চারশো 4 রান। দলের রান সংখ্যা 75, 75 রানে পৌঁছে গেল দল এই মুহূর্তে। তবে যেখান থেকে চলমান পঞ্চম ওভারে খেলা। তবে এই ক্ষেত্রে সৌগত মান্না একেবারে বলকে জমা পড়লো সরাসরি খেলোয়াড়ের হাতে। আর সৌগত মান্নাকে ফেরত যেতে হবে টাকা আউটে। একটা পুরো পতন ঘটে গেল না এই মুহূর্তে। সত্যির উদ্দেশ্য ম্যাচ, ডু অ্যান্ড ডাই। ডেস্টিনেশন গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য 8 বল থেকে 19 রানের প্রয়োজন। মিস্টার মান্না ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন। আট বল থেকে 19 রানের প্রয়োজন। একেবারে উদ্দেশ্য ম্যাচ, ডু অ্যান্ড ডাই। মহাদেব ধ্রুব 11 জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের দলীয় রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 75 রানে পৌঁছে গেল।
নবাগত ব্যাটার মিস্টার বিকাশ, বোলিং মার্কে মিস্টার আকরাম। আবার লম্বা রান আপ দৌড় শুরু করবেন বিকাশের বিরুদ্ধে, যে তার জন্য 8 বল থেকে 19 রানের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে একেবারে ডিপ পয়েন্ট অঞ্চল থেকে বল চলে গেল সীমানার বাইরে, সবুজ ঘাসের বুক চিরে বিকাশের ব্যাট থেকে। আর এই 4 রানের সুবাদে এই মুহূর্তে স্কোরবোর্ডে মহাদেব ধ্রুব ইলেভেন জঙ্গলমহল ইউনাইটেডের 79 রান। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কেবলমাত্র 7 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। 7 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন, যে কথাটা প্রত্যেকটা সময় শেষ মুহূর্তে এরকম পরিস্থিতি দাঁড়ায়। 7 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। একেবারে উদ্দেশ্য ম্যাচ, কোন টিম জয়লাভ করবেন। 7 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। একেবারে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ, রীতিমতো জমে উঠেছে এমটিসিএল মেদিনীপুর টেনিস ক্রিকেট লিগ। 7 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আবারও বল উচ্চতা পেয়েছেন, দ্রুত পায়নি। ইয়েস, বিকাশকেও ফেরত যেতে হবে টাকা আউটে। আরও একটা উইকেটে পতন। अगर बात करें, देखिए वो चीज़ का फिर जिक्र करना चाहूँगा। एक तरफ वो जीतने का उम्मीद, तो दूसरी तरफ हारने का डर, क्योंकि वो समय आ चुका है इस समय। और जीत की दहलीज तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 गेंदों में 15 रनों की यहाँ पर जरूरत है। 6 गेंदों में 15 रनों की यहाँ पर जरूरत है। इस समय स्ट्राइक में बल्लेबाज मिस्टर संजय और नॉन स्ट्राइक में असीम। और गेंदबाजी की मोर्चे पे पूर्णेंदु गेंदबाजी की मोर्चे पे। 6 गेंदों में 15 रनों की यहाँ पर जरूरत है। कुछ भी हो सकता है। पूरी तरह से हाई वोल्टेज मैच, एमटीसीएल मेदिनीपुर टेनिस क्रिकेट लीग, इस मेदिनीपुर की सरजमीन पे। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা করেছিলেন, তবে ওখান থেকে জোরদার আপিল করেছেন আনফিল্ড আম্পায়ার এই মুহূর্তে মিস্টার অরিন্দম মাইতি এবং পাইকাম স্যার আছেন। আম্পায়ার ইজ নট ইন্টারেস্ট। প্রথম বল ওখান থেকে ডট বল পূর্ণেন্দু। আর 5 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। অবশ্যই কোন টিম জয়লাভ করবে, কি মনে হচ্ছে এই সময় শক্তিদা? 5 বল থেকে 15 রানের প্রয়োজন। बिल्कुल, मैच किलो तराजू पर जा बैठा है। 5 में 15 बन ही सकता है। हम तो देखे 3 गेंद में 16 जब सौगतो मन्ना ने बना लिए तो चौथा खेलने की आवश्यकता था नहीं। लेकिन हम कहाँ रुकने वालों में से हैं। वेट करो, सब्र करो, अभी पिक्चर बाकी है। मैं मैदान में अभी खड़ा हूं, ये उन्होंने कहा, ये जतलाया है। সীমা ডেকোরেটর ম্যাক্সিমাম অভাব বাউন্ডারি, একেবারে স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে বলটাকে পাঠিয়ে দিলেন সীমানার বাইরে মিস্টার সঞ্জয়। 2 বল থেকে 6 রানে অপরাজিত। 300 স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন এই মুহূর্তে সঞ্জয়। चारों तरफ चर्चा है, वंस मोर, पूरे बंगाल में ये शोर है। एमटीसीएल अब 4 गेंदे 9 रन, कहानी में ट्विस्ट है।
कि छक्का पूरा मेहनत में पानी फेरने वाला है। ये ऐसा छक्का, इंपॉर्टेंट छक्का आया, देर आया दुरुस्त आया, और उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि मेरी एंट्री लेट है पर ग्रेट है, और ग्रेट खेला है पूर्णेंदु बारिक कह सकते हैं हम। ऐसे घोड़ा घाटा के टीचर से, लेकिन शिक्षक बन करके ये सामने आ रहे हैं पूर्णेंदु। बिल्कुल बिल्कुल देखिए सकते भैया, एक लाइन तो बनता है हसीम के लिए, यस, अब 2 गेंदे 2 रन। क्योंकि कहते हैं ना, ओ मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दस की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दस की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्यों प्रतिभाओं की नगरी कहते हैं हम। 2 बॉल 2 रन, कहानी में ट्विस्ट, ऑफसाइड ऑफसाइड ऑफसाइड, यस। এখনো ম্যাচ কিন্তু অন আছে, রীতিমতো জমে উঠেছে, একেবারে হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। কোন টিম জয়লাভ করবে, শেষ হাসিটা কে হাসবে? बिल्कुल शेष हंसी के लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं। दोनों डॉकआउट में देख सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंट, क्या मजा है। चारों तरफ दर्शक खड़े होकर के ऐसे मैच के लिए उपस्थित होना चाह रहे थे, लेकिन अब तक हमने सुपर ओवर देखा नहीं है। क्या वो देख लेंगे एमटीसीएल से सीजन 4 पर? क्या कहती है पब्लिक? कहती है पब्लिक यस, আমরা সবকিছু দেখতে চাই, কেন মেদিনীপুরের প্রত্যেকটা খেলোয়াড় সবাই সেরা। আর সেরা ম্যাচ কিন্তু আজকে আমরা বলতেই পারি, সেরা ম্যাচ। একটি বল জিততে গেলে 2টি রান করতে হবে, 1 गेंदे 2 रन। क्या मैच है, हाई वोल्टेज मैच, मजेदार मैच, क्रंच मैच। ऐसे मैच की पूरी गुंजाइश थी एमटीसीएल में, और चौथे सीजन में हम देख रहे हैं 1 गेंदे 2 रन। একেবারে দেখো শক্তিদা, আজ সকাল থেকে কিন্তু আমরা দেখেছি 6টা বল থেকে 6টা ওভার বাউন্ডারি বত্রিশের ব্যাট থেকে, এবং সুরজিৎ 5টা ওভার বাউন্ডারি, অর্থাৎ 5টা 6 সুরজিতের ব্যাট থেকে। তো গতকাল থেকে ম্যাচ চলছে এমটিসিএল। তো এই মুহূর্তে আমরা যে সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছি, 1 বল থেকে 2 রানের প্রয়োজন, সুপার ওভার হবার একটা কিন্তু সম্ভাবনা হতে পারে। তো কি মনে হচ্ছে? बिल्कुल हार्ट बीट बढ़ रही है। अंदर आई थी गेंद, भाग रहे हैं खिलाड़ी, रनआउट का सुजोग है। अंपायर क्या कह रहे हैं, रिक्स 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 लेना चाहेंगे नहीं, और ये डायरेक्ट टीवी अंपायर तक भेज दिए हैं। वहां जश्न मना रही है एंजल सीकेआर। क्या ये आएगा बिग एलईडी पर बड़ा डिसीजन? क्या एक रनआउट इस प्रतिस्पर्धा से एक टीम को बाहर का रास्ता दिखा रही है? बिल्कुल देख लेंगे हम, बस अब कुछ पल की वो घड़ी है, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, डिसीजन आ जाएगा। क्या आएगा डिसीजन? अंपायर ने कहा OUT आउट, और इसी के साथ टीम ध्रुव 11 महादेव जंगल महल यूनाइटेड इस प्रतिस्पर्धा से आउट हुई है, बाहर हुई है। और एंजल सीकेआर अच्छा पलटवार किया है, मैच में वापसी की है, और इसी के साथ आगे बढ़ी है। आगे का जो मुकाबला